नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। राजधर में आप सभी का स्वागत है। राजधर में आज बात करेंगे पंजाब की। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह केंद्र सरकार के साथ मिलकर ड्रामा कर रहे हैं। यह आरोप पंजाब में विपक्षी पार्टियां सीएम कैप्टन पर लगा रही हैं। वहीं सीएम ने आज दिल्ली में जंतर मंतर पर विधायकों के साथ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कृषि राज्य का विषय है, हमने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए नए कृषि कानून बनाए हैं, लेकिन यह बिल अभी राज्यपाल के पास है और हम 20 तारीख को उन्हें बिल देकर के आ गए थे, लेकिन उन्होंने अभी तक राष्ट्रपति को नहीं भेजे। राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा गया था। पंजाब की स्थिति से अवगत कराना चाहता था। उम्मीद करता हूं कि राष्ट्रपति इस बिल को स्वीकार करेंगे, ऐसा सीएम ने कहा है। और इस मौके पर सीएम अमरिंदर ने यह भी कहा है कि शांति बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी है। हमने अपने देश के लिए बहुत बार खून दिया है और आगे भी देने को तैयार हैं। हम कोई झगड़ा नहीं चाहते। पंजाब में शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है। वहीं किसान कानूनों पर लगातार सियासी घमासान जारी है। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया है, जिसे आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल की तरफ से ड्रामा बताया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी पंजाब सरकार पर हमला बोला है। इसी करके ਅਸੀਂ कह रहे हैं कि सरकार ਜਿਹੜੀ है ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਰੰਟੀ ਮੰਗਦੇ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਓ, ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਓ, ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਗਾਰਡ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਓ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਓ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਓ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਨੋਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਤੋਂ ਮਤਲਬ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਰੋਕ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇਹ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ। ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਉਹ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ ਕਿਉਂ ਰੁਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੱਕੀ ਕਿਉਂ ਰੁਲ ਗਈ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਕਿਉਂ ਰੁਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਡਰਾਮੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਤਾਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਧਰਨਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, उनका मर बैठे। वो हम तो ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਅਗਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲ ਪੂਗੀ, ਪੈਸੇਂਜਰ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅੰਡਰ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿੱਥੇ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਟ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਟੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਦੈਟ ਟੂ ਹੈਪਨ। ਚਲੋ ਜੀ, ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਯਾਰ ਉਹ ਨੋਟੰਕੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ पर मेरे नाल क्यों बिल पास किया सी, और फिर गवर्नर साहब को बिल क्यों गए थे, और उसके बाद शायद इन्होंने दिल्ली वालों ने रोक दिया होगा, क्योंकि दिल्ली वालों ने अपनी असेंबली में पास नहीं किया है। यहाँ भी किसान है दिल्ली में, उन्होंने करना चाहिए सी। पंजाब में 32 जगह रेलवे की यातायात ठप हुई है और इसके कारण पंजाब और उसके आगे जाने वाली रेलवे, बोथ गुड्स एंड पैसेंजर सर्विसेज आर इंपैक्टेड। ये पंजाब सरकार की अकर्मण्यता के कारण है। Essentially, law and order is responsibility of state government. It can have dialogue with farmers and solve the matter, but they have not done. केंद्र ने कुछ नहीं अन्याय किया। जितनी बिजली
उनको कोटे से मिलती है, सेंट्रल कोटे से, उतनी पूरी की पूरी बिजली केंद्र सरकार मुहैया। इसी मुद्दे पर मेरे साथ चर्चा करने के लिए पंजाब के नेता विपक्ष हरपाल चीमा जुड़ चुके हैं। हरपाल जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। लगता है संपर्क टूट गया, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से लगातार इस मुद्दे पर सियासी घमासान जो है वो जारी है, किसानों के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस का यह हल्ला बोल है, और दिल्ली में जिस तरीके से आज धरना प्रदर्शन किया गया है उसको आम आदमी पार्टी की तरफ से, शिरोमणि अकाली दल की तरफ से एक ड्रामा जो है वो करार दिया गया है। और पंजाब में ब्लैकआउट का खतरा लगातार बढ़ रहा है, किसानों के लिए भी लगातार जिस तरीके से किल्लत खाद की बनी हुई है। और वहीं अगर बात की जाए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि केंद्र ने पंजाब के साथ कोई अन्याय नहीं किया है, पंजाब को उसके कोटे की पूरी बिजली भी केंद्र सरकार की तरफ से दी जा रही है। और इस साल किसानों से धान की खरीद पिछले साल के मुकाबले 25% से ज़्यादा हुई है। पिछले साल 122 लाख मीट्रिक टन धान किसानों से खरीदा गया था, और इस बार अब तक 158 लाख मीट्रिक टन धान जो है वो खरीदा जा चुका है। और वहीं उन्होंने इस बात को लेकर के भी पंजाब सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है, जिसकी वजह से रेलगाड़ियां, मालगाड़ियां जो हैं वो पंजाब में नहीं पहुंच पा रही हैं। इसको लेकर के भी उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि जो किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे बातचीत करनी चाहिए राज्य सरकार को, और किसानों को रेलवे ट्रैक से हटाना चाहिए ताकि रेलों का जो परिचालन है वो शुरू किया जा सके। और वहीं अगर बात की जाए विपक्षी दलों की, तो विपक्षी दलों ने साफ तौर पर यह कहा है कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ये ड्रामा कर रहे हैं। भगवंत मान ने अगर बात की जाए तो साफ तौर पर यह कहा है कि पंजाब के लोग ये समझ चुके हैं कि कृषि कानूनों को वापस लेना और एमएसपी पर गेहूं, धान समेत सभी फसलों की खरीद की गारंटी का फैसला प्रधानमंत्री के हाथ में है। फिर कैप्टन प्रधानमंत्री से मिलने की बजाय इधर उधर की ड्रामेबाजी करके किसको बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये सब कैप्टन किसानों को गुमराह कर रहे हैं। और भगवंत मान ने यह भी कहा है कि अब कैप्टन को गद्दी छोड़ देनी चाहिए। सिंह ने आज जंतर मंतर पर यह धरना प्रदर्शन किया है और यह कहा है कि कृषि राज्य का विषय है, और तो लगातार जिस तरीके से पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के बीच कहीं ना कहीं आपसी घमासान जो है वो देखने को मिल रहा है, और इस घमासान के बीच में जिस तरीके से अब आज जो देखने को मिला, जिस तरीके से पंजाब में ब्लैकआउट की स्थिति बनी हुई है, लगातार बिजली का जो संकट है वो गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी को देखते हुए इस मुद्दे पर मेरे साथ चर्चा करने के लिए नेता विपक्ष हरपाल चीमा एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हरपाल जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। हरपाल जी, लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए, पंजाब में किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रेलवे ट्रैक पर भी डटे हुए हैं, सड़कों पर भी डटे हुए हैं, और आज पंजाब के सीएम ने दिल्ली में जाकर के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया है। और पंजाब में अगर बात की जाए मुख्य विपक्षी दल की, तो आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले विधानसभा में समर्थन जरूर दिया गया, लेकिन अब जब समर्थन नहीं दिया गया तो पंजाब के सीएम का यह कहना है कि दिल्ली वालों ने कहीं ना कहीं उनको रोका है। देखिए, पंजाब सरकार जो है, पंजाब के सीएम साहब जो है, कैप्टन साहब, वो लगातार नौटंकी कर रहे हैं, लगातार नाटक कर रहे हैं, लगातार वो नाटक की सीरीज पंजाब में खेल रहे हैं, पंजाब के किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं। जब सबसे पहले इनके ही जो एग्रीकल्चर के सेक्रेटरी थे, उन्होंने नोट दिया था पंजाब के मुख्यमंत्री को, ये काले कानून आने वाले हैं। आज से लगभग 9 और 10 मंथ पहले उन्होंने नोट दिया था कि पंजाब के खिलाफ ये षड्यंत्र, ये साजिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रच रही है। कैप्टन साहब ने तभी क्यों नहीं जो एक्शन लिया? उस वक्त क्यों नहीं बोले? उस वक्त क्यों जो समर्थन किया? जब हाई पावर कमेटी की बात आई तब पंजाब के मुख्यमंत्री ने उस पर मोहर लगाई, उस पर सही किया, फिर पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर को भेजा, उस पर सही लगाई। अब पंजाब की विधानसभा में इन्होंने जो देश के कानून है, जो यूनियन लिस्ट में है, उसमें जो इन्होंने उनके खिलाफ जो है अमेंडमेंट पेश की है। अमेंडमेंट को देश का राष्ट्रपति या पंजाब का गवर्नर माने या ना माने, ये उनकी डिस्क्रिप्शन है। तो ऐसा काम करके ये पंजाब के किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं। इनकी मूलीभूत जो है
कैप्टन साहब की मिलीभगत बीजेपी के साथ है पहले, क्योंकि जितनी बार भी कोई चिट्ठी लिखी है, कभी नड्डा साहब को चिट्ठी बिल्कुल लिखते बिल्कुल, हैं, मेरे साथ JP मनोरंजन नड्डा साहब को कालिया लिखते हैं। बीजेपी नेता है, बीजेपी के सीनियर नेता है मनोरंजन कालिया जी, वो भी जुड़ चुके हैं। मनोरंजन जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद जी। मनोरंजन कालिया जी, जिस तरीके से ये आरोप लग रहा है कि केंद्र सरकार और पंजाब सरकार मिलकर के किसानों को कहीं ना कहीं गुमराह कर रही है, इसमें क्या कुछ सच्चाई है और क्या वजह है कि अभी तक ये जो मुद्दा है उसको सुलझा नहीं पाई है, ना ही तो केंद्र सरकार और ना ही पंजाब सरकार? यही वजह है कि पंजाब में फिलहाल आपात स्थिति बनी हुई है। देखिए, पहली बात तो ये कि भी जो केंद्र सरकार पहले ऑर्डिनेंस लेके आई, फिर जो है एक्ट पास हुआ है, ये सभी इन्हीं लाइंस पे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 2017 और 2019 में उनके मैनिफेस्टो में था, हमारे मैनिफेस्टो में नहीं था। लेकिन जो चीज हित में है, देश के हित में, तो जो एनडीए सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पास करवाए। तो अगर ये गलत था, अगर ये कैप्टन साहब कहते हैं कि भी गलत है, तो पहले ये माफी मांगे और 2017 में जो इन्होंने एपीएमसी अमेंड किया है वो उसको अनडू करें। अब जो कुछ ये अब कर रहे हैं, ये सिर्फ पॉलिटिकल नाटक है और किसान भाइयों का ध्यान भटकाने के लिए कि भाई उंगली कटाकर शहीद होने वाली बात है। क्योंकि इसी तरह का इन्होंने 2005 में जब कैप्टन साहब की सरकार थी तो टर्मिनेशन ऑफ वाटर एक्ट जो है वो लेके आए थे। तब उस वक्त यूपीए की सरकार थी, गवर्नर भी कांग्रेस द्वारा अपॉइंटेड थे, राष्ट्रपति भी अपॉइंटेड, ठीक है ना। तो उसकी लीगल सैंक्टिटी और जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं, तो वो अगर वो नहीं पास करवाए उस वक्त की सरकार, तो अब जो है जो बिल जो किए इन्होंने पंजाब विधानसभा में, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और लीगल सैंक्टिटी इसकी नहीं है, तो उस टच स्टोन पे ये पूरे नहीं उतरते। इसीलिए अकाली दल ने यू टर्न लिया, इसी ने आम आदमी पार्टी ने यू टर्न लिया। तो अब जो है कि भी मालूम है कि भी ये जो है कि भी कॉन्स्टिट्यूशनली जो है ये उस टच स्टोन पे पास नहीं होंगे, तो इन्होंने जो है कि भी सिर्फ किसानों को कि हम उंगली कटाकर शहीद हो रहे हैं, हम शहादत दे रहे हैं, हम आपके बहुत ज्यादा जो है कि भी उनके हितैषी हैं। अगर ये हितैषी हैं तो 90,000 करोड़ का कर्जा जो इन्होंने कहा था कि हम माफ करेंगे, क्यों नहीं किया है? अभी तक इन्होंने 4,500 करोड़ का कर्जा ही सिर्फ माफ किया है। तो अगर ये हितैषी होते तो जो उन्होंने आप वादे किए तो वो क्यों नहीं पूरे किए? तो आज घोटाला हुआ है, आज पोस्ट मैट्रिक घोटाला हुआ है, उस पे जो अपने मंत्रियों को बचाया जा रहा है। सवाल ये है कि ये जनता का हित नहीं है, इनको अपने आप का हित है। बिल्कुल, सभी पार्टियां ये कह रही हैं कि हम किसानों के हित में हैं, किसानों के हित की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है ना ही जनता को ना ही किसानों के कि उनके हित की लड़ाई आखिरकार लड़ कौन रहा है। मनोरंजन कालिया जी और हरपाल चीमा जी मेरे साथ लगातार बने रहिएगा। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के लिए रुकेंगे। उम्मीदों में गाती हर जुबान आगे उजाले हैं, आगे उजाले हैं, महागठबंधन को अब के मिलके जिताने वाले हैं। कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं।
यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरीके से पंजाब सरकार ने अब केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और उसमें पंजाब सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि पंजाब सरकार की तरफ से ड्रामेबाजी की जा रही है। सीएम कैप्टन ड्रामा कर रहे हैं। हरपाल चीमा मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, नेता विपक्ष पंजाब के। हरपाल जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि लगातार चाहे बात बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो या फिर किसी और अन्य दल की हो, सभी दल अलग अलग तरीके से अपने आप को किसान हितैषी बता रहे हैं, लेकिन किसानों के हित में है कौन सी पार्टी, ये किसान समझ ही नहीं पा रहे। देखिए, सबसे पहले देश में राज करने वाली पार्टी बीजेपी और अकाली दल ने जो काले कानून लेके पंजाब के किसानों के, देश के किसानों के खिलाफ थोपे, ये तो स्पष्ट है ना। ये इसमें तो कोई दुचित्ती की बात नहीं है कि पंजाब का अकाली दल पंजाब में जो राज करता था, जब तक वो पास नहीं हुए तब तक वो हिस्सा बने रहे, तब तक वो उस बीजेपी का हिस्सा बने रहे, जब तक वो बिल पास ना हुए तब तक लगातार उन बिलों की सपोर्ट करते रहे। उसके बाद कांग्रेस की बात आती है। कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में एपीएमसी एक्ट पास किया। कांग्रेस पार्टी के चोन मैनिफेस्टो में, जो 2019 का चोन मैनिफेस्टो है इनका, जो इलेक्शन में इन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया था, जो इनके प्रेसिडेंट उस वक्त के राहुल गांधी जी ने जो जारी किया था, उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम ऐसा ऐसा कानून लेके आएंगे, ऐसी ऐसी लेजिस्लेशन लेके आएंगे, ऐसे बिल हम पास करेंगे। सो ये दोनों पार्टियों ने बिल्कुल स्पष्ट संकेत जो है किसानों को 2019 की इलेक्शन से पहले दिया हुआ था। और दूसरी बात रही कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन साहब जब हाई पावर कमेटी की मीटिंग हुई, उस कमेटी में जाके इन बिलों पे मोहर लगा के आए। लेकिन चीमा साहब एक बात मैं जानना चाहता हूं यहां पर, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब विधानसभा में जो बिल लेकर के आए गए, उस वक्त श्रोमणी अकाली दल, आम आदमी पार्टी, पंजाब कांग्रेस के साथ थे, पंजाब सरकार के साथ में खड़े थे कंधे से कंधा मिलाकर के। तो क्या जल्दबाजी थी उस वक्त में? जल्दबाजी में आपने समर्थन किया था पंजाब सरकार का? देखिए, हमारी पिछले हिस्ट्री पे भी देख रही है ना, हम एक दिन पहले कहां थे? हम 20 तारीख से पहले 19 तारीख को कहां थे? हम पंजाब की विधानसभा परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि हमें बिल दे दीजिए, बिल की कॉपी दे दीजिए। लेकिन बिल की कॉपी पढ़े बिना ही आप उनके समर्थन में क्यों खड़े हो गए थे? अरे भाई साहब, उस वक्त पंजाब के सीएम ने अपील की थी कि हमें इकट्ठे होकर पंजाब केंद्र सरकार को मैसेज देना है, केंद्र सरकार के खिलाफ ये बिल लेके आए। मेरे यकीन कीजिए, इस बिल में पंजाब के किसान की प्रोटेक्शन है। उस वक्त पंजाब की असेंबली में मैंने ये तर्क रखा था कि पंजाब के सीएम साहब, इस बिल में ये अमेंडमेंट कीजिए, इस बिल को इनकॉर्पोरेट कीजिए कि पंजाब के किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, कम से कम समर्थन मूल्य पे किसान की फसल, जो पंजाब के किसान की 23 जो फसल है पंजाब के किसान की, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है पंजाब का, वो उनपे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे पंजाब की सरकार खुद खरीदेगी, पंजाब की सरकार खुद इसकी परचेज करेगी। जेकर मान लो जो बिल लेके आए हैं, केंद्र सरकार पंजाब में परचेज ना करे, सेंटर की सरकार पंजाब में परचेज ना करे, प्राइवेट प्लेयर पंजाब में परचेज ना करे, तो कौन करेगा? तो पंजाब सरकार की जिम्मेवारी बनती है। तो मैंने ये तर्क दिया था, मैंने ये पंजाब की विधानसभा में रखा था। उस दिन आपको पता होगा कि मीडिया की एंट्री बैन थी पंजाब सभा में, पंजाब विधानसभा में। उस दिन किसी को बुलाया नहीं गया। एक तरफ का जो मीडिया, एक तरफ का जो सरकारी मीडिया था इनका, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कैप्टन साहब को दिखाया, क्योंकि ये जाली व फर्जी कैप्टन साहब को पंजाब के किसानों का मसीहा बनाने की कोशिश हो रही थी। उस वक्त हम पंजाब विधानसभा में थे, उस वक्त हमने समर्थन किया। पर लेकिन जब उसकी बारीकियां पड़ी, जब उस कानून के तह तक गए, जब हमने लीगल एक्सपर्ट जो बड़े बड़े कानूनदान से उससे पूछा, जो खेती बाड़ी के एक्सपर्ट से उनसे पूछा, तो उन्होंने सभी ने बताया कि किसान के फायदे का जो है बिल नहीं है जो पंजाब विधानसभा में पास हुआ है। उसके बाद हमने इसका विरोध किया और हमारी अब भी मांग है, आज भी मांग है, उस दिन भी मांग थी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, कम से कम समर्थन मूल्य पे पंजाब सरकार किसानों की फसल की जो परचेज है, जो खरीद है, उसको यकीनन बनाए
तो लेकिन हरपाल जी, जो केंद्रीय किसान कानूनों में जो कमियां बताई जा रही हैं कि उसमें एमएसपी की गारंटी नहीं है, केंद्रीय मंत्री आज सामने आकर के ये कह रहे हैं कि जितना पिछले बार धान की खरीद हुई थी उससे 25% ज्यादा तक इस बार धान की खरीद की गई है, और वो भी एमएसपी पर। क्या पंजाब के किसानों को पूरी एमएसपी मिली है? देखिए, जो 1 साल का मामला है, आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, आने वाले 2 साल 3 साल बाद केंद्र सरकार को क्या आपत्ति है कि क्यों नहीं वो 2 लाइनें कारपोरेट करती, 2 लाइनों का अमेंडमेंट क्यों नहीं लेके आती, क्यों नहीं ऑर्डिनेंस जारी करती कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे पंजाब के किसानों की, हरियाणा के किसानों की, देश के किसानों की। बिल्कुल, प्रगट सिंह जुड़ गए मेरे साथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। प्रगट जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। थैंक यू जी, थैंक यू। प्रगट जी, जिस तरीके से आज दिल्ली में धरना प्रदर्शन दिया गया है, वहां पर सीएम पहुंचे थे और उसको कहीं ना कहीं जो पंजाब की मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या शिरोमणि अकाली दल हो, ड्रामा बताया जा रहा है। एक्चुअली अगर ये ड्रामा है तो ये जब हमने हाउस में सारा कुछ पास किया था, इन्होंने उससे सहमति क्यों जताई थी? प्रगट जी, ये साफ तौर पर ये कह रहे हैं, हरपाल चीमा साहब मेरे साथ लगातार बने हुए, ये कह रहे हैं कि हमने ये कहा था कि अगर पंजाब सरकार इस बात की गारंटी देती है कि वो एमएसपी पर खुद फसल खरीदेगी, क्योंकि बाहर की कंपनियों को खरीद पर बैन है और केंद्र सरकार भी अगर नहीं खरीदेगी तो पंजाब सरकार खरीदेगी, और इस बात का भरोसा दिया था सीएम ने, तब जाकर इन्होंने समर्थन दिया था। देखो, बड़ी सीधी सी बात है। देखो, मैं आज भी कहता हूँ कि जो हमने बिल पास किए हैं लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली उसका बहुत ज्यादा असर नहीं है, लेकिन असर इस बात का है कि पंजाब सारा इकट्ठा है और इकट्ठे होके फाइट कर रहे हैं। लेकिन हरपाल जी, क्या आपको लगता है कि पंजाब सारा इकट्ठे होकर के ये लड़ाई लड़ रहा है, और क्या इस तरीके से लड़ाई लड़ी जा सकती है? जैसे पंजाब के सीएम साहब लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे पंजाब की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। पंजाब के सीएम साहब क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री के सामने जाते, क्यों नहीं देश जवाब के दीजिए। प्रधानमंत्री से बात करते, क्यों नहीं देश के खेती-बाड़ी मिनिस्टर से बात करते, क्यों नहीं देश के रेलवे मिनिस्टर से बात करते, क्यों नहीं जो प्रॉपर डिसीजन लेने वाली अथॉरिटी है उसके पास जाते, क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री के सामने धरना देते? उससे क्यों डरते हैं? क्यों पंजाब के मुख्यमंत्री डरते हैं? हम उसके साथ जाने को तैयार हैं, पर लेकिन ये नौटंकी बंद करें। कभी पंजाब में राहुल गांधी को लेके आते हैं। बिल्कुल, हरपाल जी, प्रगट जी बने, प्रगट जी जवाब दीजिए। देखो पता नहीं, देखो चीमा साहब बहुत समझदार एलओपी लीडर हैं, लेकिन बात ये है कि एक मैसेज देने वाली बात है। इनको भी पता है कि जो हमने कानून बनाए हैं उसका लीगल एंगल पे या कॉन्स्टिट्यूशन एंगल पे बहुत ज्यादा असर नहीं है। फर्क बात है कि हम इकट्ठे होके फाइट करें, क्योंकि ये आपस में अगर उसका कोई ज्यादा असर पड़ने वाला ही नहीं है, सिर्फ एकता ही दिखानी है, तो फिर ये बिल लाने की जरूरत क्यों थी प्रगट जी? ये लड़ाई लड़ी जा सकती थी। हेलो जी प्रगट जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ। प्रगट जी, मेरा सवाल ये है कि अगर इन बिलों का, इन कानूनों का जो आपने बनाए हैं पंजाब विधानसभा में, अगर इनका असर ही नहीं पड़ने वाला इतना कुछ, तो फिर एक साथ होकर के वैसे बिना इन बिलों के भी लड़ाई लड़ी जा सकती थी, फिर इन बिल लाने की जरूरत ही क्या थी? नहीं, देखो उनके ऊपर बेसिकली एक प्रेशर डालने वाली बात है। देखो हम भी, देखो आप सब एक्सपर्ट्स हैं, ये भी एक्सपर्ट्स हैं। बेसिकली जब देश की पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिया, चाहे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक नहीं किया, क्योंकि उनकी जो वो लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट जो है उसमें नहीं आता, ये तो स्टेट सब्जेक्ट है, वो एक अलग बात है, वो लीगल बात है, लेकिन उन्होंने पास कर दिया। लेकिन उसको चैलेंज करना तो हमारा काम है ना, क्योंकि उसको चैलेंज सबने साथ मिलकर किया है। और ये हरपाल सिंह जी भी बहुत तारीफ कर रहे थे उस दिन तो चीफ मिनिस्टर की। बिल्कुल प्रगट जी, अब आपके कानूनों को, आपके बिलों को जो पंजाब की मुख्य विपक्षी पार्टियां वो चैलेंज कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। प्रगट जी, हरपाल चीमा जी, मेरे साथ आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके से पंजाब के और पंजाब सरकार और भारत सरकार के बीच जो घमासान छिड़ा हुआ है किसान कानूनों को लेकर के, वो अभी जारी है। आगे आगे होता है क्या, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर।
और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर।